Jai Jagannath, happy Rath Jatra to all of you. So from today onwards we will start my UPSC journey series. So it will take almost, you can say, 3 to 4 parts because it's quite long. And from today's video we will start the part 1, and this is the part 1 video. Let me introduce myself, those who are watching me for the first time. I am Pooja Chakraborty. I born and brought up in West Bengal, North 24 Parganas. So basically I completed my graduation in 2017 from English Honours from APC College under West Bengal State University, and from 2017 I started preparing for WBCS, that is our state civil service. So in under guidance of a 2 private teacher, and one of my private teacher who was my English teacher, Obhik sir, and Obhik sir was told me that Pooja, you can continue for the studies for WBCS because WBCS is a versatile area, because I was from arts background, and from being an arts background student and from English Honours background, it was quite easy, and you can say you can do it, because I was very scary about math, reasoning, this kind of paper. So I think CGL, CHSL was not a good option for me. But yes, when I was doing my graduation in English Honours, I was mentally prepared that I will go for either academic line or competitive exam line, because my mother, or you can say both of my parents were they wanted me to join any civil service, or you can say any government service, any of them, but not any other option, because I was also good at my extracurricular activities since my school days, like in Kathak or in painting, music. But yes, they have told me that you have to choose a career in government service. So that's why after graduation I have started preparing. I have not missed any, you can say, not a single day, because I have still remembered that I think 28th March was my last exam of graduation, and from 29th March I went to Obhik sir for English tuition, and Olive sir for GS and math reasoning tuition. So I have went almost, you can say, 5 to 6 months, not more than that, almost 2017, you can say, from April to December. I have completed the coaching classes for the general competitive exam and WBCS. So from 2017 I have started only only the competitive exam and the WBCS syllabus, not the UPSC one. So when I was in December, I think it was in December 2017, when I went to my bank for some work actually. So there one uncle was saying that from Bengal not very few people got selected in IAS, or UPSC is very tough exam. Bengali people don't have the courage to attempt in the exam of UPSC. So that uncle was telling like this. So that for the first time I heard about that UPSC नाम का कुछ चीज़ होता है, UPSC के नाम की कुछ एग्ज़ाम भी होता है, उससे पहले मुझे पता भी नहीं था. So for the first time, that time I heard about UPSC, civil service, or you can say IAS, IPS. But yes, I was heard about the IPS or IAS since my childhood. But the term of UPSC or the commission name I have not heard. उससे पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था. So for the first time I heard in bank. So उसके बाद मैं घर आई, और I have searched a lot on internet. What is UPSC, how it is conducted their civil service exam. That time I asked my teacher also that what is UPSC, how they have conducted the exam. So maximum people around my you can say my family members or everyone told that it is very tough, don't go for it, because WBCS or state civil service is quite possible, but it's quite difficult for UPSC for a Bengali medium student, because my actually schooling was in totally Bengali medium. But yes, I have completed the graduation in English Honours. That's why I was quite confident at that time that yes, I can manage actually. So that time I started searching on internet, and that was the biggest mistake I have ever done, because in December 2017 I started searching for UPSC, and it was in, I think, January 28th January 2018 was the WBCS prelims exam, and I was quite prepared, you can say, because I was preparing since 7-8 months. So I was quite prepared, but still the last moment revision is the most important key to get success in any type of exam. But I have totally skipped the revision of WBCS syllabus, and that was the biggest blunder I have ever made in my life.
So I have totally searched UPSC wala content on YouTube and started watching toppers video, and that time Roman Saini sir, Tina Dabi ma'am, that was very famous of that time. So I started watching their videos on YouTube, and almost you can say only 2 to 3 hours I study for WBCS, and maximum the whole day 5 to 6 hours I spent on the watching toppers video and searching on internet, and what is DEF, how interview are conducted and everything. So like this I have wasted 1 month, and when I went to WBCS prelims, and I got almost you can say 95, I think 95 or 92 ऐसा ही कुछ मिला था. और that year the cutoff for WBCS prelims was only 97, and I missed only by 5 or 6 marks because आंसर की भी नहीं आती थी, और वो लोग कुछ ऑफिशियल आंसर की तब नहीं देते थे, अभी देते हैं बट तब नहीं आती थी. सो मे बी 5 और 6 मार्क्स से मेरी छूट गई 2018 वाला WBCS prelims. एंड दैट टाइम इन 2018 फेब्रुआरी मंथ में CHSL था. So I went to CHSL, I went to give CHSL, and that time CHSL, CGL, these kind of exams are conducted in online mode, and I have some migraine issue. I cannot tolerate more lights, cannot tolerate because my eyes are you can say tearing. So that's why after giving CHSL I came to home, and I got sick. That time my mother told me that if you want to pursue civil service, then why are you giving all these exams? You should focus only on one exam and give your 100%. So that was the you can say तो मुझे लगा ऐसा कि चलो हम लोग बंगाली में एक कहावत कहते हैं मेघना चाहती जल. That means what I was actually asking for, my mother she herself told me that you should stop all these exams, all competitive exams, and you should focus only on civil service, either UPSC or WBCS. So that time in February 2018 I started preparing for WBCS. UPSC from 2018 to February, and that was the biggest mistake I have ever did. And what was the mistake I want to tell you, that I was started with the Hindu newspaper from the very beginning, from the very first day. When I will edit this video, I will try to add all the pictures, all my notes, all the booklet, if I could got them, then I will attach on the side, or you can say left side, that from the 1st February 2018 I started reading Hindu newspaper. That time I have not studied at all any NCERT. In my whole life I was a Bengali medium student, so that's why I have not touched, I have not seen any NCERT in my life. That was the first day I was starting from the 6th NCERT. So when I was starting from 6th NCERT, that time at least I should complete 3 to 4 months of study of NCERT. I should have completed at least 6th to 10th NCERT first, then I should touch the Hindu or making notes of current affairs. But yes, I have make a blunder, because I was trying to appear in 2019. I was thinking that 2019 will be my targeted year, so that's why I have started note making. Because that time Roman Saini sir he had made a video on YouTube that I think 1.5 year strategy for UPSC 2019, and here the sir have I think he have shared a strategy on that. He shared that making newspaper note is very important, and you have to make the newspaper note a short clips note. But being a person who have not studied Hindu, have not studied NCERT, and I had no guidance at all. And at this moment there are lots of good people on YouTube are available. I will tell them, I am very thankful to them, Rahul sir, Shivin sir, and those who are available from, you can say, last 1 year actually. But I am telling in 2000, I am talking about 2018 actually. So that time only I think Shumit sir, only IAS founder Shumit sir was the reliable source for me for the Hindu discussion. I started watching sir Hindu discussion, Shumit sir Hindu discussion, and for that I am really grateful to sir that actually he have made my work very you can say easy. So that time actually I started from Hindu newspaper reading and NCERT reading. So like this I have completed, you can say, 4 months because February, March, April, May
and I think if I am not wrong 3rd June or 5th June, maybe 3rd June or 2nd June UPSC prelims 2018, right? I think 2nd June was the UPSC prelims 2018 और मैंने कुछ सोचा समझा नहीं और फॉर्म को जस्ट फिलअप कर दिया और एग्ज़ाम देने चली गई. एक्चुअली दैट वाज दी माय फर्स्ट ब्लंडर आई हैव एवर मेड. एक्चुअली फर्स्ट नो, that was the second blunder. First blunder I have already made in December 2017, and the second was the without any preparation, without preparing for us at least 1 or 2 years, at least I have not covered any standard books. मुझे ऐसा लगा और मेरी कुछ फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक बार देख के तो आते हैं एग्ज़ाम वाला फीलिंग लेने के लिए, और एग्ज़ाम वाला एक इन्वायरमेंट में अगर हम एग्ज़ाम देते हैं तो कैसा फील होता है. तो they have just told me that you should go, you should approach the first attempt and in the second attempt you will clear all the stages, but ऐसा नहीं होता. हाँ, so whatever, so that was the second blunder I have ever did, and without any preparation, only reading 6 to 8 NCERT within these 4 months, because I was struggling almost 6 hours every day for Hindu, because I was giving almost, you can say, the morning time. Every day I just wasted 6 hours by making notes, watching YouTube videos, lots of videos, because मुझे तो पहले दिन ही सुमित सर का वीडियो नहीं मिला, तो इसलिए मैं बहुत सारे वीडियोस को देखते देखते लास्ट में जाके ऑलमोस्ट यू कैन से एक डेढ़ महीना के बाद मुझे सुमित सर मिला यूट्यूब में. तो उससे पहले मेरी बहुत टाइम वेस्ट हुई. तो उसके बाद दैट वाज दी यू कैन से आई थिंक 2nd June आई गेव द फर्स्ट अटेम्प्ट. That time I was quite able to solve few questions. I think my GS marks was, if I am not wrong, it was 40 or I think I have totally forgotten. Actually 43 I think मेरी CSAT की मार्क्स थी 43 या फिर GS की मार्क्स थी 43 और CSAT में I think ऐसे ही कुछ था. 30 और 40 के बीच मेरी दोनों पेपर की मार्क्स थी, GS और CSAT दोनों के. तब मुझे लगा कि मैं 43 पार ला रही हूँ विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो अगर मैं एक साल बहुत अच्छे से मेहनत करूँगी तो ये तो इजीली 90-100 ऐसा तो कुछ आ ही जाएगा, क्योंकि जो कट ऑफ जाती है तो ऐसे ही जाती है. तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि कुछ प्रिपरेशन के बिना ही सिर्फ WBCS की थोड़ी प्रिपरेशन थी. सो WBCS की प्रिपरेशन से मुझे 43 ऐसा ही कुछ मार्क्स आया था GS में, और CSAT में भी ऐसा ही कुछ था. मुझे बहुत दिन हो गया, मैं एक्चुअली भूल गई हूँ ना मार्क्स को, तो ऐसा ही कुछ मिला था. तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ और घर आके मैंने 2019 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि बीइंग अ जनरल कैंडिडेट आई विल गेट ओनली 6 अटेम्प्ट. सो मुझे ऐसा लगा कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट में ऐसे ही क्लियर कर लूँगी, क्योंकि मैं तो बचपन से ही अच्छी रही हूँ स्टडीज़ में, स्कूल में टॉपर रही थी, तो कॉलेज में भी क्वाइट गुड स्टूडेंट, नॉट अ टॉपर बट एटलीस्ट आई एम अ स्टूडियस पर्सन. सो मेरी अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस थी और मैं अपने ऊपर थोड़ा विश्वास था. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर 2019 एंड 2019 में जो फर्स्ट महीना था बहुत अच्छे से ही जा रहा था. तो उसके बाद फ्रॉम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2019 सितंबर इट वाज गुड. आई वाज sorry, it was 2019, not 2019, it was 2018. So till 2008 December 2018 तक you can say जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक सब अच्छा ही चल रहा था. तो दिसंबर 2018 में मेरी जो मिडिल हम लोग बंगाली में मेजदी कहते हैं, सो मेरी जो सेकेंड सिस्टर है, मेरी बड़ी सिस्टर की शादी 2016 में ही हो गई थी. हम लोग 3 बहन हैं. तो 2018 दिसंबर में मेरी मेजदी की शादी थी. दैट मीन्स मेरी मिडिल सिस्टर जो है उसकी मैरिज थी. तो तब मुझे ऑलमोस्ट आई हैव वेस्टेड 2 months यू कैन से फॉर फैमिली फंक्शंस. ऑलमोस्ट दिसंबर जनवरी ऐसे ही चला गया. तो उसके बाद फरवरी से मैंने डेडिकेटेडली प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट की. लेकिन तब भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि WBCS प्रीलिम्स भी था 2019 में. WBCS प्रीलिम्स 2019 फरवरी में और 28 एक्चुअली WBCS प्रीलिम्स इधर जनवरी के लास्ट एंड में लास्ट संडे को होता है, या फिर फरवरी के जो फर्स्ट संडे होता है उसमें होता है. मे बी अभी नहीं है बट तब था. So that time I started preparing for WBCS prelims for at least 1 month. In January I have to start for WBCS prelims,
and that was the best attempt I have made in WBCS, and I got I think 118 or 117 for my whole life actually in WBCS 2019 wala attempt, because yes, I have prepared a lot, I have studied a lot, my whole day, even I still remember that was the winter time in January 2019. ऐसा हो जाता था कि 2 दिन 3 दिन मैं बिना नहाए पढ़ रही हूँ, ऐसा भी हुआ था. So that time I was satisfied that yes, I have made a good amount of hard work, and yes, it was a good attempt in 2019 WBCS prelims. I got 117 or 118 and the cutoff was 105. But what was the tragedy? That tragedy was the corruption. I have not shared anything on this. इससे पहले मैंने कभी भी YouTube पे इस बात को कभी नहीं बताया. एक्चुअली आई वॉन्ट टू क्लियर इट इन हिंदी, बिकॉज मुझे लगता है मैं इस बात को इंग्लिश में उतनी अच्छी से बता नहीं पाऊँगी. तो 2019 में जब मेरा WBCS प्रीलिम्स घर आके जब मैंने आंसर की था तो उससे मिलाया तो मेरी 117 आ रही थी. तो मुझे लगा तो इस बार तो अच्छे से मैं मेंस लिखूँगी. तो उसके बाद जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में मेरी रोल नंबर नहीं आई, तो मैंने RTI करी. PSC ऑफिस, हमारे जो वेस्ट बंगाल PSC ऑफिस है वहाँ पर गई, और मेरे जैसे ऑलमोस्ट यू कैन से 5000 पीपल वर देयर. मुझे लगता है अभी अगर किसी भी भाई ने या फिर दादा ने या बहन ने मेरी वीडियो देखी, तब मेरे साथ बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी PSC ऑफिस के सामने. ऑलमोस्ट यू कैन से 3000 4000 ऑलमोस्ट 5000 पीपल वर देयर, जो लोग मेरी तरह थी 2019 WBCS प्रीलिम्स में, जिनका कट ऑफ से ऊपर नंबर आया, लेकिन लिस्ट में जो PDF में जो रोल नंबर है उसमें उन लोगों का रोल नंबर नहीं है. मेरे साथ भी सेम हुआ था, और हम लोग एक एप्लीकेशन दिए, बहुत कुछ किया, लेकिन उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं आया. बहुत बार गए, लेकिन हम लोगों को यू कैन से पुलिस देकर बाहर निकाला गया, और बहुत कुछ हुआ. एक्चुअली दैट टाइम यू कैन इमेजिन द सिचुएशन वाज. So I was totally hopeless and totally frustrated. I got in depression, and मेरी प्रीलिम्स थी, UPSC की प्रीलिम्स थी दो महीना बाद. जब 2 महीना या फिर 1 महीना, आई थिंक 1 महीना, WBCS प्रीलिम्स की रिज़ल्ट आने की 1 महीना बाद ही 2019 का UPSC प्रीलिम्स था. तो that time WBCS prelims totally wasted my UPSC prelims 2019 because I was totally mentally shattered, because मुझे लगा था मैं इस बार क्लियर कर लूँगी, क्योंकि मेरी मार्क्स 117 आई, 118 आई. मेरी सर was confident that yes you will write mains this year, but मेरी रिज़ल्ट में रोल नंबर नहीं आई. तो छोड़ो, कोई बात नहीं. तो उसके बाद मैंने सोचा चलो अब एटलीस्ट 2019 प्रीलिम्स के लिए थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ. सिर्फ 1 मंथ ही बाकी थी तब. दैट टाइम आई थिंक इट वाज इन मे, फ्रॉम मे, और एग्ज़ाम थी आई थिंक 5th और 3rd जून, मे बी जून की जो फर्स्ट संडे थी उसमें ही एग्ज़ाम थी 2019 की. तो एग्ज़ाम से 3 दिन पहले मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करी थी. इट वॉज़ अ गुड प्रिपरेशन, बट CSAT अच्छी नहीं थी क्योंकि मेरी आर्ट्स बैकग्राउंड थी, और मुझे साइंस में आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा डर लगती है. So that time I totally prepared. I gave wholehearted time for the GS, but not the CSAT. I was a yoga teacher since you can say 2015. I was doing everyday yoga, but when I started preparing for UPSC, I have totally stopped every physical and mental well-being of myself, and that was the 3rd mistake I have ever did. Because when actually जब आप बहुत ज़्यादा लंबी कुछ चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, लाइक UPSC और नीट JEE टाइप ऑफ एग्ज़ाम, योर मेंटल वेलबिंग एंड फिजिकल वेलबिंग इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. बट मैंने उसको टोटली नेग्लेक्ट किया. मैंने योगा स्कूल जाना बंद कर दिया. मैंने सिर्फ और सिर्फ घर में रहकर सारा दिन, यू कैन से ऑलमोस्ट 12 आवर्स एवरी डे मैं स्टडी करती थी. मुझे लगता था, फ्रॉम बीइंग अ हम्बल बैकग्राउंड स्टूडेंट, आई वाज अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. आई विल लेटर डिस्कस इट. सो दैट टाइम आई थॉट कि एक सरकारी नौकरी चाहिए. हम लोग बंगाली में गवर्नमेंट जॉब या फिर सरकारी चाकरी कहते हैं. सो एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए. सो इसलिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. सो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती. मैंने कथक छोड़ दी, मैंने योगा छोड़ दी, मैंने पेंटिंग छोड़ दी, मैंने एवरीथिंग छोड़ दी, एंड टोटली मैं डेडिकेटेड होकर सिर्फ और सिर्फ WBCS और UPSC की पढ़ाई कर रही थी 2017, 18, 19. तो 2019 में प्रीलिम्स से 3 दिन पहले
मुझे मेरी एग्ज़ाम थी, इसलिए मेरी जो मेजदी है, दैट इज़ माई सेकेंड सिस्टर, तो वो अपने ससुराल से, इन लॉज़ के हाउस से हमारे घर आई। और क्योंकि मुझे संडे को एग्ज़ाम देने वो ही लेने गई थी एक्चुअली, और मुझे छोड़ने वो ही गई थी, तो इसलिए वो आई। अगर एक्चुअली क्या हुआ ना, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी की प्रॉब्लम है, उसको हमेशा गर्मी लगती है, मुझे हमेशा ठंडी लगती है। तो हम लोग रात में एक साथ सोए, और वो ना जो बड़ा वाला स्टैंड फ़ैन होता है, तो उसमें से उषा के जो बड़ा स्टैंड फ़ैन था उसको चलाए। बहुत ज़्यादा एक्चुअली एयर आई थी उस फ़ैन से। तो दैट टाइम मुझे सारी रात मैंने नींद, एक्चुअली मेरी नींद तो ख़राब हुई, एट द सेम टाइम आई गॉट कफ। तो मैंने जब सुबह उठा तो देखा मेरी गला टोटली चोक्ड है, और मुझे ठीक से बातें भी नहीं आ रही थी, और ऑलमोस्ट यू कैन से 102 या फिर 103 मेरी बुखार भी थी। सो आई गॉट फीवर, आई गॉट कफ, आई गॉट हेडेक, माइग्रेन, ऑल ऑफ दिस। सो मेरी मम्मी कही कि डोंट गो फॉर एग्ज़ाम देने मत जा, क्योंकि एग्ज़ाम ख़राब होगा। तो मैंने सोचा यार चलो कोई बात नहीं, मैं पूरा साल मेहनत किया तो नहीं दूंगा, तो मेरी एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगा आई शुड गिव अटेम्प्ट, बिकॉज मुझे लगा था कि एक पैरासीटामॉल खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो रात को एक पैरासीटामॉल, सैटरडे को ये आई थिंक ये इवेंट हुआ था फ्राइडे को रात को, या फिर सैटरडे को मॉर्निंग में, और मैंने सैटरडे नाइट को एक पैरासीटामॉल खा लिया था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम देने चले जाएंगे। लेकिन जब सुबह उठी संडे को, मेरी फ़ीवर नहीं थी, तो मैंने सोचा फ़ीवर चला गया, तो मैंने एक भी पैरासीटामॉल नहीं खाया संडे मॉर्निंग में। तो मैंने एग्ज़ाम देने चली गई। जीएस अच्छा था, इट वॉज गुड, बिकॉज 2019-18 वाला क्वेश्चन आई थिंक मैक्सिमम पीपल हैव सॉल्व, सो यू नो दैट टाइम क्वेश्चन वॉज ईजी। 2020, 23, 24 ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था। So 2019 paper was I think I was getting 80, 83, maybe it was not the cutoff, but yes, it was a good for me actually, because I have not studied for the WBCS prelims, for the result of WBCS, or you can say for my sister's marriage. On all these occasions almost I have wasted 2 to 3 months, and still I was getting 80, 83. It was kind of these marks, एंड आई वॉज सेटिस्फाइड। तो जब मैं जीएस की पेपर लिख रही थी तो उसी वक्त मुझे फिर से बुखार आ गई, क्योंकि मैंने सुबह कोई पैरासीटामॉल नहीं खाई थी, और मेरे साथ कोई पैरासीटामॉल नहीं थी एक्चुअली, मैंने लेके भी नहीं गई थी। बहुत ही यू कैन से इमेच्योरिटी के काम की थी ये, पूरी मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर भी ये मेरी गलती थी कि मुझे या फिर पैरासीटामॉल लेके जाना था या फिर खा के जाना था, मैंने कोई भी नहीं किया। सो उस टाइम आई गॉट सेंसलेस एक्चुअली। मैं जब प्रीलिम्स जीएस की पेपर दे रही थी तो उसके बाद मैं सेंसलेस होके गिर गई थी। तो उसी स्कूल में, क्योंकि स्कूल का जो एनवायरनमेंट था बहुत ही यू कैन से गंदा था। वो लोग अभी तो कोविड के बाद से वाटर बॉटल अलाउ करते हैं, तो अभी तो वो लोग ट्रांसपेरेंट बॉटल अलाउ करते हैं, लेकिन उस टाइम वो भी अलाउ नहीं था। तो जब भी मेरा एक्चुअली गला सूख रहा था, मुझे बार बार जाके उस टेबल के ऊपर से एक जग था, उस जग से ही मुझे पानी पीना था। तो ऐसे मैंने 3-4 बार गई, और उसके बाद जो लास्ट टाइम था मुझे इतनी ज़्यादा चक्कर आ गई और मैं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। तो उन्होंने नीचे जाकर मेरी नाम और रोल नंबर से मेरी गार्जियन को पुकारा, वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि मेरी जो यू कैन से ब्रदर इन लॉ है, मेरी बड़ी सिस्टर की जो हस्बैंड है, उन्होंने मुझे छोड़कर अपनी घर चली गई थी, क्योंकि वो शियालदा के काची थी एक्चुअली, बहुत पास था। तो इसलिए उन्होंने मुझे छोड़कर अपनी घर चली गई, क्योंकि जब मेरी एग्ज़ाम हो जाएगी तो वो फिर से मुझे लेने आएंगे। तो उसके बाद वो लोग मेरे मुंह में थोड़ा पानी यू कैन से क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे तो ये भी नहीं पता, थोड़ा ब्लिंक किया पानी। तो उसके बाद मेरी जो फैमिली मेम्बर्स थी उन लोगों को कॉल किया और वो लोग आके मुझे लेके गए। सो इट वाज माय 2019 अटेम्प्ट दैट आई ओनली गेव जीएस पेपर, नॉट दी सीसेट पेपर। सो सीसेट पेपर ना देने की वजह से मेरी जो रिज़ल्ट थी वो भी नहीं आई, क्योंकि सीसेट में एब्सेंट होने से आपकी जीएस की जो कॉपी है उसको चेक भी नहीं करते वो लोग, और अगर करते भी है मुझे नहीं पता, वो एब्सेंट आता है। सो आपको दोनों ही पेपर देना पड़ता है, लाइक जीएस सीसेट बोथ, अदरवाइज अगर आप जीएस में क्वालिफाई भी करो तो उसका कोई मतलब नहीं। तो ऐसे मेरी 2019 अटेम्प्ट भी वेस्ट हो गया। So how this is the, you can say that was the fourth blunder I have made, that इतनी ज़्यादा फीवर होने के बाद भी, मेरी मम्मी ने मुझे मना करने के बाद भी मैंने एग्ज़ाम देने गई, और
ऐसा हुआ। आई हैव वेस्टेड 2 अटेम्प्ट इन 2018। सिर्फ 3 महीना पढ़ने के बाद एग्ज़ाम देने चली गई, इवन विदाउट कंप्लीटिंग दी NCERT। सो दैट वाज द ब्लंडर ऑफ यू कैन से 2018 अटेम्प्ट ऐसे गई, 2019 अटेम्प्ट ऐसे गई। सो उसके बाद 2020 वाला अटेम्प्ट के पहले मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा एक यू कैन से आई कैन नॉट से सॉरी ओके। सो 2019 अटेम्प्ट के बाद मैं घर आई and I started preparing for 2020 because I was in 2020 I thought कि मुझे अभी WBCS पे मैं फोकस नहीं करूँगी, क्योंकि 2019 के जो 2019 में मेरे साथ जो हुआ WBCS में कट ऑफ क्रॉस करने के बाद भी रिज़ल्ट में नहीं रोल नंबर नहीं था, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दुख दिया। यू कैन से मैं थोड़ा करप्शन के बारे में जानी, और यू कैन से आई वॉज टोटली लॉस्ट होप from the state civil service or you can say state any kind of service. So I was totally hopeful for the UPSC. मुझे ऐसा लगा कि UPSC टफ है लेकिन करप्शन नहीं है उसमें, अगर मैं मेहनत करूँगी तो मुझे फल मिलेगा। अगर मैंने मेहनत नहीं करी तो UPSC में अगर नहीं हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा 2020 में सिर्फ और सिर्फ मैं UPSC दूँगी, WBCS नहीं दूँगी। सो 2019 जून में UPSC प्रीलिम्स था, तो उसके बाद 4 महीना यू कैन से 4 एक्चुअली 3 महीना जून जुलाई अगस्त, यू कैन से जून जुलाई अगस्त, दिस 3 महीना आई हैव studied a lot. You cannot imagine actually. I studied almost you can say every day 12 to 14 hours because तब एक ज़िद बन गई थी मुझे जैसे तैसे करके 2020 वाला अटेम्प्ट निकलना है। So on 5th September 2019 and that was you can say how a pampered little child, little girl of a family turned into a responsible woman because मैं अपनी घर की सबसे छोटी हूँ। बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार मिला है अपने पेरेंट्स से, अपनी बड़ी सिस्टर से, लेकिन उसके बाद 5 सितंबर वो टीचर्स डे भी था, तो उस दिन मेरी पापा का सेकेंड टाइम हार्ट अटैक हुआ। सो माई फादर गॉट सेकेंड टाइम हार्ट अटैक एंड दैट वाज द मैसिव हार्ट अटैक यू कैन से, एंड such a family like us, my father's earning was you can say 5,000 per month. It was the earning that time only 5,000 per month and उस 5,000 से हमारा 5 लोगों का 6 लोगों का फैमिली चलता था। तो दैट टाइम माई फादर गॉट सेकेंड टाइम हार्ट अटैक एंड मेरी पापा एक प्रीस्ट है, हम लोग बंगाली में पुरोहित कहते हैं, ब्राह्मण पंडित जो भी कह लो। तो यहाँ पर एक लोकल काली टेम्पल है, तो वहाँ पर मेरी पापा पिछला 26 साल से लाइक मेरी जन्म की साल लाइक 1996 से 2019 तक वो वहाँ पर 4 सितंबर तक वहाँ का पुजारी था। तो उसके बाद उन लोगों ने उनको काम से निकाल दिया। उन लोगों को लगा कि अब वो बहुत एजेड हो गई है, क्योंकि दैट टाइम उनका एज 64 यू कैन से 65, एट दिस मोमेंट ही इज़ 70 एंड दैट टाइम 2019 में ही वाज 65। सो उन लोगों को लगा 65 इट्स क्वाइट एजेड एंड ही कैन नॉट कंटिन्यू दी पूजा। सो दैट्स वाई अगर उन लोगों को वहाँ कुछ ऐसा हुआ तो उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा, तो इसलिए वो लोग पापा को वहाँ से काम से निकल दिया। सो दैट वाज आई थिंक 22 सितंबर, हाँ 22 सितंबर था। 5 सितंबर को पापा का हार्ट अटैक हुआ सेकेंड टाइम, और उसके बाद 22 को वो लोग हमारे घर पे आए और वो लोग कहे कि आपको वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उनका जो सैलरी था लास्ट मंथ का वो दे के गए और उनको कहा कि हम लोग दूसरा लोग से करा लेंगे। तो दैट टाइम एक्चुअली ही वॉज टोटली इन शॉक बिकॉज ही वॉज द ओनली अर्निंग पर्सन इन आवर फैमिली, कि उनकी अर्निंग के ऊपर से मैं इतनी साल से पढ़ाई कर रही थी, हमारी जो फैमिली एक्सपेंसेस होते हैं सब कुछ उनकी अर्निंग के ऊपर से ही जा रही थी। तो सॉरी जा रहा था, मेरी हिंदी में फीमेल मेल बहुत प्रॉब्लम है मुझे पता है, लेकिन जस्ट आई हैव स्टार्टेड, सो आई थिंक बताते बताते ठीक हो जाएगा। और मैं इतना आई थिंक मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट बिकॉज मैं भी सीख रही हूँ। मैं एक प्योर बंगाली हूँ, जन्म से आज तक मैंने हिंदी इंग्लिश इतनी अच्छी से कभी किसी के साथ बात नहीं किया है, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना।
तो उसके बाद मुझे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी, क्योंकि मेरी दोनों सिस्टर मैरिड थे और मेरी मम्मी और पापा दोनों ही ऑलमोस्ट यू कैन से 12,000, उन लोगों का जो मेडिसिन का जो खर्चा आता है पर मंथ वो 10,000 से 12,000 तक जाता है। तो मुझे मेरी पढ़ाई, मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी मम्मी पापा का जो खाने और यू कैन से मेडिसिन का जो खर्च होता है तो उसको सबको लेना था। तो इसलिए आई स्टार्टेड कोचिंग, बिकॉज मैं बचपन से ही बच्चे लोगों को पढ़ाने में बहुत अच्छी थी और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। और आई वॉज ऑल्सो अ पेंटिंग टीचर और ड्राइंग टीचर, बिकॉज आई हैव कम्प्लीटेड 7th ईयर तक मैंने ड्राइंग कंप्लीट की थी। ऑलमोस्ट यू कैन से 16 ईयर्स एक्चुअली मैंने जो पेंटिंग वाला कोर्स है मैंने 16 साल कंप्लीट किया है। तो जिसको हम लोग यहाँ पर डिप्लोमा कहते हैं वो मैंने कंप्लीट किया था। तो इसलिए मैं बच्चे लोगों को ड्राइंग सिखाने स्टार्ट करी और उसके साथ पढ़ाना। तो उस टाइम मेरी जो इंग्लिश टीचर थी ओभिक सर, उन्होंने कहा कि उनके पास जो इंग्लिश पढ़ने जाते हैं जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उन लोगों को जीएस टीचर की भी ज़रूरत है। अगर मैं उन लोगों को थोड़ा जीएस में गाइड कर दूँ, क्योंकि लास्ट 2 साल से मैं जीएस में पढ़ाई कर रही थी। जो लोग कॉम्पिटिटिव में पढ़ते हैं ना, उन लोगों को जीएस में थोड़ा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता या फिर डर लगता है, लेकिन हम जब और जिन लोग WBCS यूपीएससी में पढ़ाई करते हैं उनका जीएस थोड़ा अच्छा होता है। तो सर ने मुझे कहा तुम जीएस में उन लोगों को गाइड कर दो। तो सर ने बहुत सारे लोगों को कहा, क्योंकि सर को पता था हमारी फैमिली कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। हम लोगों को एक कहावत है ना, 2 वक्त की रोटी, उसको भी ठीक ठाक नहीं मिलती थी दैट टाइम, क्योंकि पापा का जो इनकम था वो इट वाज लाइक नो सेविंग्स एट ऑल, बिकॉज ऑलरेडी मेरी 2 सिस्टर की मैरिज हुई थी। तो उसमें पापा का जो सारा सेविंग्स था वो ख़त्म हो गया था। और मेरी जो यूपीएससी की पढ़ाई थी उसमें भी पापा ने बहुत ज़्यादा पैसा दिया था, क्योंकि मैंने 2019 में विजन IAS से प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ ली थी 16,000 से, मेंस की टेस्ट सीरीज़ ली थी 29,000 से। तो ऐसे ही CSAT की टेस्ट सीरीज़ ली थी आई थिंक 7,000 से। एथिक्स GS पेपर 4 की कोचिंग ली थी विजन से, इट वाज आई थिंक 7,000। सो ये जो छोटे छोटे अमाउंट होते हैं, मेरी पापा यू कैन से एट अ वन टाइम वो 2 लाख 3 लाख नहीं दे पाते थे, लेकिन वो ऐसे करके मुझे बहुत बार प्रीलिम्स मेंस GS पेपर CSAT के लिए उन्होंने मुझे बहुत बार पैसे दिए थे। तो इसलिए उनके पास कोई भी अभी सेविंग्स नहीं थी। और जब उनका हार्ट अटैक हुआ तो यहाँ पर हमारे यहाँ बारासात नारायणा हॉस्पिटल, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है। लेकिन हाँ, अगर ठीक से ट्रीटमेंट हो तो वो आदमी वापस आता है। एक्चुअली मेरी पापा बहुत अच्छे से उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ और बहुत ज़्यादा ही एक लंबा बिल आया, तो उसमें हमारा जो सेविंग्स था पूरा चला गया। तो उसके बाद देयर वाज नो सेविंग्स एंड इट वाज दी September-October 2019। और उसकी 3-4 महीना बाद ही कोविड आ गया। 2020 का मार्च से कोविड आ गया। तो उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन था। सो दैट टाइम आई हैव टोटली फॉरगॉटन अबाउट यूपीएससी, यू कैन से कि मुझे यूपीएससी करनी है, IAS बनना है। क्योंकि तब एक्चुअली आपके पास जब खाना ही ना हो, खाने का पैसा ही ना हो, तब आप यूपीएससी के बारे में कभी सोच नहीं सकते। क्योंकि पहले तो मुझे ज़िंदा रहना पड़ेगा ना, तो फैमिली को ज़िंदा रखना पड़ेगा, उसके बाद ही तो मैं उसके बारे में कुछ बड़ा सोच सकती हूँ। तो उस टाइम मैंने ट्यूशन स्टार्ट करी। मेरी बहुत सारे फ्रेंड, कॉमन पीपल यू कैन से, जो मेरी बचपन से मुझे जानते थे, वो लोग मेरे पास GS पढ़ने आते थे दैट टाइम 2019 में। और 2019 में वो लोग GS पढ़ते थे। आई थिंक इट वाज 6 पीपल और 5 पीपल, नॉट मोर देन दैट, 5 पीपल एंड फीस वाज आई थिंक 400। तो उसमें से हम लोगों का जो 3-4 हज़ार महीना का वो उठ जाता था, और मेरी सिस्टर्स भी कुछ इधर उधर के वो लोग भी दे देते थे। तो उसमें से हमारा जो घर का जो खर्चा था ऐसे ही चल रहा था। तो ऐसे जनवरी 2020 आए और मैंने सोचा दिस इज़ नॉट अ सल्यूशन। एक्चुअली वी आर नॉट लिविंग, एवरी डे वी आर डाइंग, यू कैन से, बिकॉज इट वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। क्योंकि मेरे पापा एक ट्रॉमाटाइज्ड हो गए थे, क्योंकि उनके पास काम नहीं था। वो देख रहे थे उनका कोई बेटा नहीं है, वो देख रहे थे उनकी छोटी लाडली बहुत प्यार करती है वो मुझसे, मैं घर की सबसे छोटी थी, अभी भी हूँ। तो उन्होंने देखा कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के काम कर रही हूँ एवरीडे। मुझे सुबह उठ के बाज़ार, जिसको हम बंगाली में बाज़ार कहते हैं, तो बाज़ार जाना पड़ रहा है।
और जो मछली सब्जी जो लाना पड़ता था वो पापा ही लाते थे सुबह, तो उसको मैं ला रही हूँ। उसके बाद पढ़ाने जाती थी, पढ़ाने वो लोग आते थे घर पे, तो उसके बाद घर की काम करती थी, क्योंकि पापा का उस हालत देखकर मम्मी भी थोड़ा बीमार पड़ गई। मम्मी का बहुत पहले से ही बीमार था, वो नर्व की पेशेंट है और पापा हार्ट की पेशेंट है। मम्मी को नर्व की बीमारी है, वो जब दौड़ा पड़ता है तो हाथ पाँव ऐसे खींचने लगता है, ठंड हो जाता है, ऐसा कुछ होता था बचपन से। जब मैंने छोटी थी, आई थिंक आई वाज इन क्लास 7, दैट टाइम से मेरी मम्मी की नर्व की प्रॉब्लम है। और पापा का फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक हुआ था जब मैं क्लास 5 में थी, और ये वाला सेकेंड टाइम हार्ट अटैक था, और ये बहुत ज़्यादा मजीब हार्ट अटैक था। तो इसलिए डॉक्टर ने कहा उनको कोई भी काम नहीं वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ बेड रेस्ट। और उस टाइम मैंने टोटली मेरी जो पढ़ाई थी उसको स्टॉप कर दिया और मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरी मन में एक बात थी कि मुझे ना कुछ ऐसा करना है कि ताकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन ना छोड़ूं, क्योंकि मुझे दिल से मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूं, क्योंकि मेरी हाइट बहुत लंबी है, 5.8। मुझे बचपन से यही कहा जाता था तू पुलिस में बहुत अच्छा लगेगा, तेरे ऊपर जो स्टार है ना बहुत अच्छा दिखेगा। तो मुझे बचपन से आईपीएस का बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन हाँ, कैसे होता है मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन हाँ, पुलिस का बहुत ज़्यादा शौक था। जब पता चला यूपीएससी क्रैक करके ग्रुप जो होता है सेकेंड जो चांस होता है वो आईपीएस का होता है, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे तैसे करके कुछ भी करके यूपीएससी के सर्कल के अंदर ही रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। तो मैंने सोचा एक यूट्यूब चैनल खोल लेती हूँ, क्योंकि तब मैंने थोड़ा थोड़ा यूट्यूब में देखा कि यूट्यूब से भी लोग पैसे कमाते हैं। सो मैंने सोचा एक यूट्यूब चैनल खोल लेती हूँ जिसमें मैं यूपीएससी की कंटेंट डालूंगी, मैं यूपीएससी की कैसे प्रिपरेशन करती हूँ ब्लॉग डालूंगी, कैसे यूपीएससी स्टूडेंट की लाइफ होती है। तब मैंने थोड़ा थोड़ा यूट्यूब में देखा, ऐसा कुछ मैंने ट्रेंडिंग में चल रहा था कि ऐसे वो लोग करते हैं यूपीएससी ब्लॉग्स बनाना। इसमें क्या होगा, मेरी पढ़ाई भी होगी, मेरी इनकम भी होगी। मैंने ऐसे ही सोचा था, क्योंकि अगर मैं यूपीएससी ब्लॉग बनाऊँगी, यू कैन से अगर मैं यूपीएससी की गाइडेंस दूंगी, क्लास दूंगी, तो इससे क्या होगा, मेरी भी फ़ायदा होगा। मैं भी उस टॉपिक को पढ़ूंगी, उसके बाद ही ये क्लास दे सकती हूँ। तो उस टाइम you can search also at this moment, that is the last oldest video of this channel. It was I think January 2020, and that was I think guidance of history, how to prepare history, geography, like this. I have made a playlist of single subject, and I was seeing के मुझे देखा कि ऐसे कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, 500, 200, 100। तो मुझे लगा ऐसे तो कुछ पैसे नहीं आएंगे। तो तब एक ट्रेंडिंग टॉपिक था, वो था अ डे इन अ लाइफ ऑफ ए यूपीएससी एस्पिरेंट। सो मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई, और 2-3 वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो वायरल हो गई। और रूम ऑफ अ यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसा टॉपिक तब यूट्यूब में नहीं था, अभी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब नहीं था। तो तब बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, 1-2 लाख व्यूज़ हो गए। तो उसके बाद मेरी चैनल गॉट वायरल, एंड यूट्यूब से 9 महीना काम करने के बाद आई थिंक जनवरी 2020 से मैंने यूट्यूब से काम करना स्टार्ट किया, और सितंबर 2020 में 9 महीना बाद मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई यूट्यूब से। और जो वो 9 महीना था ना, हम लोगों के लाइफ में एक यू कैन से, हम लोग बंगाली में दुःस्वप्न कहते हैं। अब द मोस्ट मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, यू कैन से द वर्स्ट फेजेस ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज उस टाइम हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, क्योंकि कोविड चल रहा था। कोविड में मेरे पास कोई स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ने नहीं आती थी, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ा रही थी। तब तो ऑनलाइन की कोई ऐसा बात भी नहीं था। अभी तो ऑनलाइन है, लेकिन तब ऑनलाइन भी नहीं था। बच्चे ड्राइंग भी नहीं सीखने आते थे। मेरी टोटली काम बंद हो गई। मेरी जो बड़ी सिस्टर थी वो एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, उसका स्कूल भी बंद हो गया कोविड की वजह से, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, वो वहाँ पर कुछ पेमेंट नहीं देते थे, कि नो वर्क नो पे ऐसा टाइप कुछ था। तो उसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो मेरी जो बड़ी ब्रदर इन लॉ है, तो उन्होंने 50,000 मेरी पापा को दिए थे, जो जब वो बीमार पड़े थे उनकी कुछ देखभाल के लिए उन्हें दिए थे। तो वो पैसा हम लोगों ने टोटली खर्च कर दिया। सॉरी, मैंने थोड़ा बहुत चीज़ एक्चुअली मिडिल से भुला दिया, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर तो मैं कुछ लिख के नहीं बैठी हूँ ना, तो मुझे रिमेंबर करना पड़ रहा है, सॉरी रिकॉल करना पड़ रहा है। तो इसलिए उसकी पापा जब बीमार पड़े, तो उससे पहले ये डिसाइड हुआ था कि मैं यूपीएससी के लिए डेली जाऊंगी, क्योंकि ऐसा कुछ था कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं होगा, डेली जाके तभी पढ़ाई होगा। तो मैंने अप्रैल 2020 के लिए फ़्लाइट का टिकट बुक करके रखा था।
कि अप्रैल 2020 में मैं दिल्ली जाऊंगी, क्योंकि 2 महीना बाद प्रीलिम्स है। मैं 2020 का प्रीलिम्स मेंस देकर 6 महीना वहाँ पर रहकर, मैंने 2 महीना फॉर द प्रीलिम्स एंड 4 महीना फॉर द मेंस, मैं वहाँ पर रहकर प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करके मैं उसके बाद वापस आऊँगी। ऐसा ही कुछ प्लानिंग था। तब तो नहीं पता था कि कोविड आएगा, मेरी पापा बीमार पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। सो इसलिए वो पहले से ही डिसाइडेड था। जब मेरे 2019 का अटेम्प्ट नहीं हुआ तब मैंने मम्मी से कहा कि आप थोड़ा पैसा इकट्ठा करके दे सकते हो, तो इसलिए मैं दिल्ली जाकर पढ़ाई करूँगी। तो मम्मी ने कुछ दिया, मैंने कुछ लोन लिया था, और मेरी जो उस टाइम एक फ्रेंड थी, तो उसकी माँ ने मुझे 50,000 उधार में दिया था, तो दिल्ली जाने के लिए। तो ऐसे कुछ पैसे 1 लाख और यू कैन से 1.5 लाख मैंने जुगाड़ करा था 6 मंथ्स के लिए यूपीएससी के दिल्ली जाने के लिए। तो वो जो पैसा था ना, हम लोगों ने कलेक्ट किया था वहाँ पर जाने के लिए, वो टोटल ख़त्म हो गया कोविड के टाइम। 7 महीना तक तो होगा, मार्च से लेकर सितंबर तक कोई भी पैसा नहीं आ रही थी, और जो सेविंग्स था दिल्ली जाने के लिए मेरी जीजू ने जो मेरी पापा को दिया था, वो सारे ख़त्म हो गए। उन लोगों का जो ट्रीटमेंट था, इसमें हम लोगों का जो खाना पीना था, उसमें सारा पैसा ख़त्म हो गया। तो उसके बाद मेरी फर्स्ट पेमेंट आई सितंबर 2020 में, आफ्टर 9 months। That was the 18,000 and that was the huge amount for me being a aspirant. I was a totally aspirant and एक aspirant होकर सिर्फ और सिर्फ YouTube वीडियोस डाल के घर बैठ के 18,000 आ सकता है, ये तो हम लोगों को कभी सोचा ही नहीं था। मेरी मम्मी पापा तो सब लोग ऐसे यू कैन से शॉक्ड हो गए कि ऐसा भी होता है, घर बैठ के जस्ट आप पढ़ाई करो, उसका वीडियो बनाओ, उसको यूट्यूब पे अपलोड करो और वहाँ से पैसा आता है। तो अब मैंने कहा, देखा, मैंने बोला था ना ऐसा होता है। तो पहले वो लोग भी ट्रस्ट नहीं करते थे, जब पैसा आया तो वो लोग ट्रस्ट करने लगे। सो फर्स्ट टाइम 18,000 आया और मुझे लगा कि ऐसे ही चलेगा, क्योंकि 18,000 तो बहुत अच्छा अमाउंट है हम लोगों के जैसे फैमिली में, क्योंकि मेरी पापा तो 3,000 4,000 मैक्सिमम 5,000 मंथ में अर्न करते थे, तो उसमें भी हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे, कोई भी शिकायत नहीं थी। तो 18,000 में तो बहुत कुछ होगा, मुझे ऐसा लगा। सो दैट टाइम फर्स्ट टाइम आई बॉट दिस माइक, आई बॉट दिस ट्राइपॉड। वो तब से लास्ट 4 साल से ही ये सारी चीज़ ही चल रही है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो उससे पहले जो फर्स्ट 9 मंथ थी ना, आप लोगों को एक वीडियो मैं हो सके तो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप देख लेना। उससे पहले जो 9 महीना था ना, मैं कैसे वीडियो शूट करती थी। मैंने एक हाथ से बाहर लेफ्ट हैंड से फ़ोन को पकड़ती थी और डान हाथ से और यू कैन से राइट हैंड से मैं लिखती थी। और कभी कभी अगर मुझे दोनों हाथ चाहिए तो मैं बहुत सारे बुक्स को ऊपर एक टेबल के ऊपर रख के उसके ऊपर फ़ोन को और एक बुक से प्रेशर देके, तो नीचे जो स्पेस रहती थी उसके अंदर मैं लिखती थी, कुछ दिखाती थी, ऐसे मैं वीडियोस बनाती थी। तो 9 महीना मैं ऐसे ही चलाई। तो उसके बाद जाके थोड़ा हार्डवर्क का रिज़ल्ट मिला और यू कैन से 18,000 आया सितंबर में। तो जब वो सितंबर में 18,000 आया ना, मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुई और मैंने 1 महीना बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी। 1 महीना, क्योंकि तब 2020 में प्रीलिम्स था, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 4 अक्टूबर, राइट, 4 अक्टूबर या फिर 10 अक्टूबर, मुझे पता नहीं, आई थिंक 4 अक्टूबर, क्योंकि कोविड की वजह से ना वो डिले हो गई थी। वो पहले तो आई थिंक मई की लास्ट में थी या फिर जून की फर्स्ट में थी, वो 4 महीना पीछे चला गया और आई थिंक अक्टूबर की 4 अक्टूबर थी। तो सितंबर से अक्टूबर तक मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, क्योंकि आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरी अब पैसे आ गए, क्योंकि उतना भी टेंशन नहीं था खाने पीने का, एटलीस्ट टेंशन 1 महीना के लिए तो चला गया। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। लेकिन हाँ, उस अटेम्प्ट में मेरा जीएस क्लियर हो गया, लेकिन सीसेट नहीं हुआ, क्योंकि सीसेट में मैंने कुछ भी एफर्ट नहीं डाली थी, कुछ भी नहीं, 0 एफर्ट आई हैव मेड ऑन सीसेट। मैंने सीसेट को थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि सीसेट तो निकाल ही जाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन में मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंग्लिश ऑनर्स हूँ, मुझे कॉम्प्रीहेंशन से पास हो जाता है। मैं तो बहुत सारा मॉक टेस्ट भी दिया था। सो मॉक टेस्ट में तो कॉम्प्रीहेंशन बहुत आते हैं, 30+ कॉम्प्रीहेंशन आते हैं। सो 30 × 2.5 मेरे जो 67.5 थे वो क्रॉस हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, 2020 में भी ओनली 25 कॉम्प्रीहेंशन आए, सिर्फ 25। एवरी ईयर 27, 28, 30 ऐसे कॉम्प्रीहेंशन आते थे उससे पहले। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम 2020 में ओनली 25 कॉम्प्रीहेंशन आया। और 25 कॉम्प्रीहेंशन में आई थिंक 23 और या फिर 24 मैंने करेक्ट किया, 2 आई थिंक मैंने रॉन्ग किया था।
और उसके साथ मैंने 5 और 6 GI जो हम लोग कहते हैं रीजनिंग को कर पाए। मैंने कुछ भी टच भी नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं आता था, तो कैसे करूं। तो मैंने जस्ट 7 GI और 25 कॉम्प्रिहेंशन किया। तो उसमें से मेरी मार्क्स बन रही थी आई थिंक 61 या फिर 62, 67.5 चाहिए था या फिर 67 चाहिए था। तो उस अटेम्प्ट में भी मेरा CSAT की वजह से 2020 में भी नहीं हुआ। तो दैट वाज द, यू कैन से, द बिगेस्ट शॉक फॉर मी बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग होल हार्टेडली। आई हैव गिव माई एवरी पॉसिबल, व्हाट विल आई से, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उस 1 महीना, लेकिन फिर भी नहीं हुआ क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन है ना वो कभी भी थ्रू आउट द ईयर नहीं हुआ। थ्रू आउट द ईयर मैंने कभी भी पढ़ाई नहीं की। आई हैव नेवर स्टडीड होल ईयर, आई हैव नेवर स्टडीड एटलीस्ट फॉर 6 कंज्यूकेटिव मंथ, आई हैव नेवर स्टडीड बिकॉज मेरी जो फैमिली कंडीशन थी मुझे कभी वो अलाउ ही नहीं किया कि मैं कुछ अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ। एग्ज़ाम के 2 महीना से पहले, 3 महीना पहले या फिर 1 महीना पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही टाइम मिलती थी, उससे ज़्यादा मैंने कभी भी पढ़ाई नहीं की 2020 तक। सो इसलिए 2020 वाला अटेम्प्ट भी चला गया। तो उसके बाद जो हुआ 2020 प्रीलिम्स के बाद मैंने दिल्ली गई। तो दिल्ली जाके मेरी एक्सपीरियंस और जो अगला 3-4 अटेम्प्ट है 2020 से लेकर 2024 तक, उसको मैं पार्ट 2 में कवर करूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इसको एडिट करने में, अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो इसलिए मैं ये पार्ट यहाँ पर ही स्टॉप कर रही हूँ। तो उसके बाद का जो इवेंट हुआ तो उसको मैं सेकेंड पार्ट में कवर करूँगी। और 2024 का जो अटेम्प्ट था उसका डिटेल एनालिसिस, उसका कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, अगर हुआ तो कैसे हुआ, जो डिटेल मेरी स्ट्रेटजी रही 2024 का, उसका भी एक डिटेल वीडियो आएगा, सेपरेट वीडियो आएगा। तो इस वीडियो में मैं आई एम एंडिंग दिस नाउ बिकॉज आई हैव मेड lots of mistakes in this video because this is the first time I am talking in front of camera in Hindi, and so that's why and in English you can say, because I think that was the last time in 2020 I have talked in English. After 4 years I am making video in Hindi, English you can say, so that's why I am little bit nervous, little bit you can say थोड़ी express नहीं कर पा रही हूँ, तो you can please adjust. I hope I will manage in future. और अगर आपको कुछ भी कहना है, अच्छा हो बुरा हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर हैप्पी टू रीड योर कमेंट। सो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा सो डू प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। सो राधे राधे।